নেটে গ্রেস মার্কস বাতিল, ফের পরীক্ষায় বসতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টে জানালো, কেন্দ্রীয় সর্বভারতীয় মেডিকেল প্রবেশিকায় 67 জন প্রথম স্থানে। এই ঘটনায় বিতর্ক। দেশ জুড়ে বাড়তি নাম্বার দেওয়া হয়েছিল 1563 জনকে। প্রশ্ন ও সময়ের কারণে বাড়তি নাম্বার দেওয়া হয়, কিন্তু র্যাঙ্কিং বিতর্ক সামনে আসতেই বাড়তি নাম্বার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপর সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র জানায় 1563 জন পরীক্ষার্থীর বাড়তি নাম্বার বাতিল। পরিবর্তে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। নেট নিয়ে কোনো দুর্নীতি হয়নি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাও ঘটেনি। কিছু ঘটে থাকলে কেন্দ্র তা দেখছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে চলব, মন্তব্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের। तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोलीज हुई है नीट के संबंध में, पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट। সাবজুডিস বিষয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়, এমনটাই মনে করছেন সুকান্ত মজুমদার। তবে বলেছেন নরেন্দ্র মোদীর ওপর ভরসা রাখতে। আমাদের সরকার সমস্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছে। বিষয়টি যেহেতু সাবজুডিস, অতএব আমার মনে হয় এই বিষয়ে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়। একটু অপেক্ষা করুন, সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরে ভরসা রাখুন। ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা, নেটে বাড়তি নাম্বার বা গ্রেস মার্ক পাওয়া পরীক্ষার্থীদের নাম্বার বাতিল করা হবে, বদলে তাদের আরও একবার পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে সুপ্রিম কোর্টকে, এমনটাই জানালো কেন্দ্রীয় সরকার। বিতর্ক তৈরি হয়েছিল একসঙ্গে 67 জন প্রথম স্থান অধিকার করায়, এবং তারপরে এই বিষয়টি সামনে আসে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের। কেন্দ্রের তরফ থেকে জানানো হলো যে আরও একবার পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন পরীক্ষার্থীরা। অয়ন আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন। অয়ন, একটু জানবো বিষয়টা তোমার কাছে, ঠিক কি বলা হয়েছে আজকে কেন্দ্রের তরফ থেকে সুপ্রিম কোর্টে? দেখো, ইতিমধ্যে যে খবর পাওয়া গেছে, সুপ্রিম কোর্টে যে বিষয়টি জানানো হচ্ছে যে নিট পরীক্ষায় যে দুর্নীতির যে অভিযোগ করা হচ্ছিল, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে যে গ্রেস মার্ক বাতিল, যে একেবারে পুরোপুরি বলা হচ্ছে গ্রেস মার্ক বাতিল, ফের পরীক্ষায় বসতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা, এমনটাই কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে কেন্দ্র। এবং তার পাশাপাশি বলা হচ্ছে যে সর্বভারতীয় যে মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা 67 জন প্রথম স্থানের যে অধিকার করেছে, সেই ঘটনায় যে দেশ জুড়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, বাড়তি নম্বর দেওয়া হয়েছিল 1563 জনকে। প্রশ্ন ও সময়ের কারণে বাড়তি নম্বর দেওয়া হয়েছিল, এমনটা জানানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফ থেকে। কিন্তু র্যাঙ্কিং এর বিতর্ক সামনে আসছে, কিন্তু বাড়তি নম্বর নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপর কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র জানায় যে 1563 জন এই যে পরীক্ষার্থী, সেই পরীক্ষার্থীদের যে বাড়তি নম্বর, সেই বাড়তি নম্বর বাতিল করা হচ্ছে। পরিবর্তে পরীক্ষার্থীরা কিন্তু নতুন করে পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। অয়ন, আপাতত অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। কথা বলছিলাম অয়ন শর্মা আমাদের সঙ্গে ছিলেন টেলিফোনে। পরীক্ষার্থীরা কি বলছেন এ বিষয়ে শুনবো।
इस बार 14,000 है वो रैंक गई है, तो 11,000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे। उनकी पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14,000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं, तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। उनकी 3,000 है, तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेड से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा। 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3,000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पे हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से बस यही एक्सपेक्टेशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे हम सबको। हम जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा, आपने उनको ब्रोशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो। इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ इसका स्कैम कर रही है। আইনজীবীরা কি বলছেন এই বিষয়ে শুনবো। ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया, और वी आर पार्शियली सेटिस्फाइड एंड आई थिंक द बैटल विल स्टिल गो ऑन। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। कोर्ट में दिया सर्कुलर, वो सर्कुलर भी गलत था। जज साहब ऑनरेबल कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि इसमें कुछ लैंग्वेज भी गलत है। उन्होंने कहा कि जो 1563 स्टूडेंट्स जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं वो उनका रीटेस्ट हुआ जाएगा। काउंसलिंग पे स्टे तो नहीं दिया, स्टे नहीं दिया है काउंसलिंग पे, पर उनके काउंसिल ने कहा कि काउंसलिंग हम आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ दीज 15